revered chief guest, DM Lucknow, parents, teachers, and my dear children. It's a great morning for us. We are privileged to have amidst us a personality whom the city reveres. And I'm grateful to him for sparing his time and finding this time amidst uncertain schedules. Today we have with us to grace us with his presence, Shri Suryapal Gangwarji. Shri Gangwarji is a graduate from IIT Roorkee and is a 2009 batch UP cadre IAS officer. He has previously served as a district magistrate for the districts of Firozabad, Hapur, Hathras, Sitapur and Raebareli. He has also served as the managing director for the Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited and currently bestows his duties as the district magistrate for the city of Lucknow. We are extremely honored to have the presence of such a revered personality, someone who excels both in science and management and has played various vital roles in the society. We now request him to address the gathering. First of all, I must congratulate all those students who has secured a place in JEE Advanced and going to join one of the best institutes for technology or engineering in India. It's indeed a greater achievement when anybody or any student gets it immediately after completing class 12th. And some of you who could not make it this year will be doing the next year or will be preparing for your entrance examination. तो यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं 11th and 12th? ओके, तो स्टूडेंट्स क्या जानना चाहते हैं, मैं वहीं से शुरू करूँ. Let us make it interactive. Good morning, sir. Sir, what I wanted to ask you is that how did you decide on your current career arc that you pursued? Like, first of all, going to IITs and pursuing an engineering career. After that, as much as I have read, you've pursued a few jobs in that field as well, and thereafter preparing for UPSC and clearing the exams and becoming an IAS officer. So how did you decide upon this career arc? Okay. What else? Let us take 2-3 questions and then we will answer all those. Sir, my question is related to the same topic, but just a part of it. Like, what I have read and what I have heard about UPSC is that if we take mathematics as an optional subject, then there is a, like, the marks are being reduced just because it is an easy subject and it is more scoring. Like, there is a grace marking for it. So is it true? And sir, what was your subject as an optional subject for the UPSC? अच्छा, ठीक है. After your engineering, many candidates are lured by the corporate jobs that are offered after the 4 years. What was your reason to go for the civil services and serve the nation rather than going for the corporates? Okay. So, since you cleared the prestigious UPSC exam and having studied engineering subjects first and then subjects of GS, history, pol science, how did you tackle that, and some tips for us who want to give UPSC exam? Good. Okay. चलिए, अब इतने क्वेश्चंस का हम लोग एक बार रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले बच्चों ने ये जानना चाहा कि कैसे और किस स्टेज पर कैरियर के बारे में डिसाइड किया. बच्चों, मैंने इंटरमीडिएट क्लास 12th 93 में पास किया था और उस समय हमारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आज आप लोगों के पास हैं ऐसी नहीं थी, ना ही जानकारी थी. तो उस समय जब इंटर कर रहे होते थे तो ओनली 2 options were there, either engineering or medical for science students, and for arts students the career starts much later, that's after graduation. तो ये ट्रेंड उस समय था, लेकिन आज ऐसा नहीं है. अभी अगर आपने साइंस स्ट्रीम को चुना है तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, और अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड को चुना है, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप और डिफरेंट प्रोफेशंस जैसे क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं लोग स्टार्टिंग से ही. तो अभी प्रोफेशनल कोर्सेज का और इवन बीबीए भी करते हैं लोग.
तो प्रोफेशनल कोर्सेज का जो एक्सपोजर है वो इमीडिएटली आफ्टर 12th मिल रहा है, दैट्स ए बेटर साइन। बाकी एग्जैक्ट मोमेंट कि कब सिविल सर्विस का डिसीजन लेना है, ये एक बहुत इवॉल्विंग जर्नी होती है। वी हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ एज इट कम्स, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग आवर बेस्ट, और फिर नेचुरली कुछ अच्छी चीज़ें निकलती जाती हैं। हम लोग लाइफ को बहुत प्लान्ड तरीके से नहीं जी सकते, हमको एक जर्नी अडॉप्ट करनी पड़ती है, और उस जर्नी में आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, इसको हमेशा रिवार्ड मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट रिवार्ड नहीं भी मिलता है, तो लेटर ऑन यू गेट रिवार्ड्स। फाइनली अगर आप देखो तो इस पूरी जर्नी में यू गेट रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क एटलीस्ट वंस इन योर कैरियर। शुरुआत में अगर जो लोग अभी जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अभी तक जितनी मेहनत की उसका रिवार्ड उनको अभी मिल गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, उनसे भी ज़्यादा लेबोरियस हों, उनको अभी रिवार्ड नहीं मिला एप्रोप्रिएट टू देयर एफर्ट्स, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका रिवार्ड अभी इसी जर्नी में कहीं आगे मिलने वाला है, वो आपको पता नहीं है। लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ इट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इवन इंजीनियरिंग के समय मुझको पढ़ाया। कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हु नोज सब्जेक्ट बेटर देन यू, तो एक दूसरे को पीयर लर्निंग भी होती है, पीयर टीचिंग भी होती है। तो मुझे पढ़ाया, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में उस समय सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका नहीं हो पाया। बट दे वर मोर ब्राइट, दे वर मोर लेबोरियस, दे वर मोर इंटेलिजेंट देन मी, आई न्यू दैट। लेकिन किसी पर्टिकुलर एग्जाम में परफॉर्मेंस वो एक अलग विषय होता है, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो एक अदर सब्जेक्ट है। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो उस समय वो चीज़ हासिल नहीं कर सके, उन्होंने लेटर लाइफ में दे अचीव्ड मच मोर देन व्हाट आई कुड अचीव थ्रू इंजीनियरिंग। तो जो भी आप एफर्ट करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन पर आप दूसरों से पीछे छूट गए हों, बट इट्स ए जर्नी, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इट्स ए कंटिन्यूअस जर्नी। माई जर्नी गोज ऑन स्टिल नाउ। तो बहुत सारे बच्चे, अभी जैसा प्रिंसिपल मैम से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा था, तो बेसिकली मार्क्स, कई बार हम लोग स्टूडेंट जब होते हैं तो एक क्राइटेरिया खुद को एसेस करने का और दूसरों को जज करने का उनके मार्क्स हो जाते हैं। ये बात सही है, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। तो हमें खुद का असेसमेंट या खुद के बारे में जजमेंट, या दूसरों का असेसमेंट और दूसरों के बारे में जजमेंट मात्र मार्क्स के आधार पर नहीं करना चाहिए। उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड देयर आर इनॉर्मस फील्ड, देयर आर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज। एकेडमिक्स में भी अगर हम देखें, अभी क्लास 12th के बाद बहुत सारे एरियाज खुलते हैं और आप लोग डाइवर्सिफाइड फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज़ में भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ टीचिंग में जाते हैं, कुछ रिसर्च में जाते हैं, कुछ लोग दूसरी जॉब्स में जाते हैं। तो इंटर करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने रुड़की से इंजीनियरिंग किया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। उस समय आईआईटी
रुड़की और MNR, ये 3 एग्ज़ाम्स होते थे, अलग एग्ज़ाम्स थे। उस समय जब हमने एंट्रेंस दिया था उस समय रुड़की IIT नहीं हुआ करता था, इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। लेटर ऑन इन 2002 इट वाज कन्वर्टेड टू IIT रुड़की। तो वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करने की। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपको मिल जाता है तो उसके अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि बच्चों को सीखने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको वहाँ अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे गाइड्स मिलते हैं, और वहाँ के एलुमनाई जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो आपको वर्ल्ड से कहीं पर भी कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये अच्छाइयाँ हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट की। तो इसलिए प्रयास सबका यही रहता है कि हमको अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, लेकिन सबको तो मिल नहीं सकता। तो जिसको नहीं मिलता है उसको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अगर ना भी हैं तो भी वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है, लेकिन उसमें उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स दूसरों की तुलना में ज़्यादा करने पड़ेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो IIT से अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, और एक है जो किसी छोटे प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। वो दोनों लोग फिर मिलेंगे अगले किसी कंपटीशन में। हो सकता है कि मान लीजिए जो कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर इन्फोसिस है, TCS है, IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट करती हैं ड्यूरिंग दी थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट। तो उसमें वो IIT से भी सेलेक्ट करती हैं, वो छोटे इंस्टीट्यूट से भी सेलेक्ट करती हैं, फिर जाके प्लेटफॉर्म एक ही हो जाता है। तो जैसे जो लोग TCS में सेलेक्ट होते हैं या इन्फोसिस में सेलेक्ट होते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सम आर फ्रॉम IITs, सम आर फ्रॉम NITs, सम आर फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो वहां पर जब पहुंचे तो फिर प्लेटफॉर्म सबका बराबर हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों का IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनको बहुत डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस ये सोचना चाहिए कि चलो वो जिस कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पर वो ज़्यादा मेहनत करके अपनी कॉम्पिटेंस में वो डिग्री हासिल करेंगे, वो लेवल अचीव करेंगे कि जब अगले प्लेटफॉर्म पर वो IITians से भी मिलेंगे तो उनका IITians भी सम्मान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास 12th के बाद नहीं परफॉर्म कर पाए या जिनका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब वो जॉब में जाते हैं दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर कैपेबल, एंड दे ऑल्सो शाइन। तो ओवरऑल मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो इसलिए है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और कंपटीशन में बस कुछ बच्चों को ही स्थान मिलता है, अच्छा स्थान मिलता है। तो बाकी लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जर्नी है, जर्नी कंटिन्यूअस रहती है, और आपको हर समय मेहनत करते रहना है, और मेहनत कभी ना कभी आपको रिवार्ड करती है, ये सुनिश्चित मान के चलिए। तो हमने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो कैंपस प्लेसमेंट में हमारी 2 जॉब्स लगी थी। तो हमने कोर सेक्टर को चूज़ किया। उस समय IT का बहुत ज़्यादा बोलबाला था 98 में। तो हमारे यहाँ रुड़की से लगभग हर बच्चे के कैंपस प्लेसमेंट में एक IT की जॉब ज़रूर लगती थी। इसके बाद वो लोग अपने कोर जॉब में भी जाना पसंद करते थे। तो वैसा ही हमने किया। लेकिन इसमें भी मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर 80% लोगों का किसी ब्रांच में जब कैंपस में सिलेक्शन हो जाता था तो फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता था। तो जो नई कंपनीज आती थीं वो सभी बच्चों के लिए ओपन रहता था। तो जिन बच्चों का पहले राउंड में सिलेक्शन नहीं हो पाता था उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था नौकरी मिल पाना। तो कैंपस प्लेसमेंट से
ऐसे कई बच्चे होते थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन हमारे बैच में भी 2 बच्चे ऐसे थे, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो पाया, एंड उन्होंने फिर एमटेक करने का डिसाइड किया। आउट ऑफ देम वन ऑफ द स्टूडेंट डिड पीएचडी ऑल्सो, उसके बाद उसने IIFT से पीएचडी किया, एंड नाउ both of them who could not get a job in campus placement, they are best placed in corporate world today. आज उनके अपने अपने कंपनीज हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। दे आर एट ए मच बेटर लेवल देन दोज पर्सन्स हु गॉट द प्लेसमेंट। तो हारने की जरूरत नहीं है, आप हारते कभी नहीं हैं। अगर आप महसूस करें कि इस बार आप जीत नहीं पाए, तो जो जीत गया वो आपके रास्ते से अलग हो गया, आपका सफर और बाकी रहा भी, आपको और मेहनत आगे करनी है। उसके बाद आपकी भी जीत लिखी हुई है, और जब वो जीत होगी तो हो सकता है उनसे भी अच्छी हो जो पहले जीत चुके हैं। ये बात बच्चों की समझ में आई है? तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि निराश हो जाते हैं कि उनके अच्छे अंक नहीं आए या उनकी अच्छी रैंक नहीं आई। ये इस समय का या जो करंट स्टेटस है वो ये है, सत्य है, दिस इज ए ट्रुथ। लेकिन इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप जो भी हैं भाई, दूसरे करें या ना करें, आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अपने हार्ड वर्क की, अपने एफर्ट्स की, अपने जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाकी करें या ना करें। यू शुड हैव अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ विच शुड गो ऑन ऑलवेज, irrespective of winning or losing. You should never start questioning yourself. हाँ, आप अपने तरीकों पे ज़रूर आपको देखना चाहिए, वो बदलने भी चाहिए। रास्ते आप जो अख्तियार कर रहे हैं उसमें आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन you must have the habit to regard and respect yourself irrespective of the results. आपको अपनी परफॉर्मेंस पर केंद्रित रहना है। जैसे अभी आप सब बच्चे समझदार हो गए हो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी बड़े आराम से। कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में सिखाया जाता है। कितने बच्चों को इसका वास्तविक मतलब पता है? हाथ खड़ा करो। कर्म करो पर फल मत चाहो, ये कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, इसका मतलब कितने लोग सही मायने में समझते हैं? देखिए, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल इज द नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, है ना? जैसे आपने पेड़ लगाया, पेड़ लगाना आपके हाथ में है, सिंचित करके बड़ा करना आपके हाथ में है, क्योंकि वो एफर्ट्स का हिस्सा है। लेकिन उस पर फल आएंगे, इट इज ए नेचुरल थिंग। उसे आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उस पे आम का पेड़ आएगा, आम का फल आएगा। आपने अगर सेब का पेड़ लगाया है तो उस पर एप्पल आएगा, है ना? तो जब आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं उस समय सिर्फ फोकस एफर्ट पर रहना चाहिए, और यही एक मूल मंत्र है। क्योंकि आगे आने वाले 6-7 सालों में जब आप अपने स्कूली शिक्षा समाप्त करके फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे,
तो आपको फोकस बस इसी बात पे रखना है कि आप बेस्ट एफर्ट करें। आप बेस्ट एफर्ट करेंगे तो उसका कंसिक्वेंस जो भी होगा वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए अनकंडीशनली। अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैं 2003 में मैंने इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया था एज इंजीनियर, हेडक्वार्टर में था। तो आई वॉज सेटल्ड इन माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट वॉज ए PSU, very good job if you see, but there the time was available, and I thought after doing all the work of office, I am having plenty of time and energy because I was coming from private sector. So I was accustomed to work harder for longer hours. कि मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारा समय भी बचा है और एनर्जी भी है, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में से गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर का वर्किंग एकदम अलग होता है गवर्नमेंट सेक्टर से, तो यू गेट लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो. नाउ इट्स योर चॉइस. नाउ I request all the students to listen this very carefully, because this is the gist of my life. You have choices at all moments. हर समय आपको कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है. Life is all about decision making at every moment. Now, what decision you make, आप उस सफर में चलते हुए अपने कदमों को किस तरह से रखते हैं, मीन्स आप हर मोमेंट किस तरह से डिसीजन लेते हैं, ये हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का अपना अपना तरीका होता है. एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो. ठीक है, हम क्या बनते हैं आगे या कहां पहुंच पाते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर होता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या है, हमारी सोच कैसी है, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस किस तरह से चलती हैं, हमारे कॉग्निशन में और बॉडी में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, और हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं. जो भी आउटकम होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन मेकिंग. जो मैथ्स के बच्चे हैं वो इस बात को समझ लें कि द रिजल्ट्स आर ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ योर डिसीजंस. ठीक है, R=FD. समझ में आया? तो जो भी रिजल्ट्स होंगे, आप कहां पहुंचे हैं, कितना दूर पहुंचे हैं, कितनी ऊंचाइयां हासिल की हैं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कहां से चले हैं. मेरा सफर बहुत लंबा रहा है. मैं एक गांव को बिलोंग करता हूं और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं. मेरा सफर दूसरों से लंबा रहा है. हर किसी का सफर अलग अलग होता है. कोई जो शहर में रहता है उसका हो सकता है सफर थोड़ा सा छोटा हो, ग्रामीण परिवेश से आने वाले का सफर थोड़ा लंबा हो सकता है. लेकिन अगर डायरेक्शन पता है तो स्पीड आपके डिसीजंस तय करते हैं. जो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होती हैं वो तय करती हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब इंडियन एयरलाइंस में मैंने ज्वाइन किया तो आई वॉज हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम. देन आई थॉट, बिफोर दैट many times I had this in mind कि I must appear for civil services, but working in corporate sector for 16-17 hours a day does not leave you enough space for that preparation. तो 6-7 साल जब उस तरह के एनवायरनमेंट में काम करके आए तो इंडियन एयरलाइंस में देखा कि काफ़ी वहाँ पर समय भी है और एनर्जी भी बची हुई है. पर्सनल लाइफ में भी सेटल थे, प्रोफेशनल लाइफ में भी सेटल थे, तो देयर वाज नथिंग टू लूज. इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, देयर इज नथिंग टू लूज. इफ आई कैन गेन समथिंग, if I can get into civil services, that's very good. अगर नहीं कर पाता हूं तब भी what is
going from my side. Then I decided to start preparation. कि कुछ खोने को तो है नहीं. प्रिपरेशन में ये सुना था कि पर्सनैलिटी बदल जाती है टोटल, एंड दैट वाज ट्रू. कि जो बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसका सब्जेक्ट मैटर इतना वाइड है और इतना डीप है कि इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी कंप्लीटली. यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपका टोटल पर्सपेक्टिव बदल जाता है. जो सिंसियरली सिविल सर्विसेज की लंबी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद उनका वर्ल्ड को, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. बिकॉज नंबर एक, उनके पास नॉलेज आ जाती है सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, सबकी कुछ बेसिक नॉलेज आ जाती है. और उस नॉलेज के बेस पर उनका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का थोड़ा बदल जाता है. और ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी एक इंप्रूव्ड पर्सनैलिटी हो जाती है. वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके भीतर. तो मैंने यही सोचा कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इसी बहाने मैं अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लूंगा. तो यहां से शुरुआत हुई. तो आप लोगों ने एक गाना वो सुना होगा, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इसी बहाने चलो देख ली दुनिया हमने. तो दैट मीन्स कि हो सकता है जिसके लिए ड्रीम फॉर करो वो ना मिल पाए, तो उसका कोई मलाल नहीं होना चाहिए. उस सफर में आपने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लिया, यही एक बड़ा अचीवमेंट है. तो ये सोच के हमने आईएएस की तैयारी शुरू की. तो 2007 के एग्जाम में आई गॉट इनटू IRS, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज मुझको मिला. उसके बाद अगला एफर्ट जब किया 2008 में, तो आई गॉट ऑल इंडिया एर्थ रैंक एंड गॉट इनटू IAS एंड गेट दिस होम कैडर ऑल्सो. तो अब किसी बच्चे ने पूछा था सब्जेक्ट्स के बारे में. सब्जेक्ट्स के बारे में ये बहुत रेलेवेंट नहीं है. जैसे एक बच्चे ने कहा कि मैथ्स में स्केलिंग होती है. स्केलिंग किसी भी कंपटीशन का जहां पर कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इवेलुएट करना होता है और मेरिट लिस्ट बनानी होती है. तो उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है दैट इज नॉट नोन टू एवरीबडी. ये हर साल उस समय डिसाइड होती है बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर. तो उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको क्या सोचना है, कभी भी आप किसी फील्ड को लेते हैं उसमें इंटरेस्ट को जरूर देखिए. जैसे हमने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद हमने जो सिविल सर्विस के सब्जेक्ट्स लिए थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी लिए थे, क्योंकि इन दोनों में इंटरेस्ट था और वही इंटरेस्ट प्रोपेल करता था सिविल सर्विस में आने के लिए. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 25-30 years of my career if I get selected into civil services. So that was the background. Second, psychology was chosen because I will be dealing with people, not the machines, so I must know how it functions. So that was basic desire, and then the interest got developed into these two subjects, and the result was very favorable for me. तो आपको अपने इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव्स, अपने ओवरऑल एप्टीट्यूड को देखते हुए आपको सब्जेक्ट्स का डिसीजन लेना चाहिए. या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप जाएं तो उस समय इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए. तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस लिए थे वो मैं अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश किया, और अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं.
Sir, I wanted to ask that there are many exams that a student can give, but like the major difference between IAS and other is like they are academic exams that let you enter a certain college or a prestigious career path. However, like IAS is a little different, the exam of UPSC, because it is about being able to serve the people and being a civil servant. So I want to ask, what is like the mindset or like basically the aim or the reason why doing UPSC that you should have in your mind so that the goals that you want to achieve are better achieved, and like what is the reason you should go for UPSC? See, it is one of the career options after graduation. तो पहले अभी यहाँ से निकलने के बाद तो आप लोगों को ग्रेजुएशन के बारे में सोचना चाहिए, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको फर्दर अपने कैरियर और जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए. तो पहले तो अडॉप्ट प्रोफेशन और गो इनटू दैट ग्रेजुएशन फील्ड जो आपको अच्छा लगता है और जिसका स्कोप है. देखिए, दोनों चीज़ें आपको माइंड रखनी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल वही चीज़ करो जो आपको इंटरेस्ट है. मैं इसको नहीं मानता हूँ. मैं दो चीज़ें इसमें और ऐड करता हूँ. एक तो आपको कोई भी कोर्स या कोई भी सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसका अच्छा स्कोप भी होना चाहिए. क्योंकि अगर स्कोप नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बहुत जूझना पड़ेगा सक्सेस प्राप्त करने के लिए, जो अदरवाइज आपको रिलेटिवली इजीली हासिल हो सकती है. अब दूसरी बात रही कि एग्ज़ाम्स के पैटर्न सबके अलग अलग हैं. कुछ एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो वैकेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जॉब्स के हों या हायर स्टडीज़ के हों. ये सब जब आप जाएंगे तो इसमें वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो चूज करना है जो आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल है. So you said that we should focus on scope. So one should be the one who focuses on scope and runs after scope, or one should be the scope creator. Like if someone discovers something in the field of research, it's technically. वो बहुत अच्छी बात है बेटा. अगर आप अपना स्कोप खुद बना सकने की क्षमता रखते हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए स्कोप हो गया. ठीक है. हर व्यक्ति के लिए एक नई दुनिया सृजित करना ये संभव नहीं होता है. तो वो जो क्रिएटेड अलग अलग वर्ड्स हैं वो उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करता है, और जो व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम है उसको एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहिए. वो उसके लिए स्कोप है. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I had read a book, 12th Fail, yeah, where they said that you should develop habits of writing if you really want to clear IS services. So is that true? And sir, another question is that, is IS really worth it? पहला, कि लिखना आना चाहिए. देखिए, सारे बच्चों के लिए communication is very important. In your whole life, after your graduation, the single most important aspect of your personality is communication, which is judged by everyone else. After graduation, आपका कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग आपके बारे में बोलता है. वो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, दोनों तरह के कम्युनिकेशन पर आप लोगों को अभी से काम करना चाहिए. लैंग्वेज इज सेकेंडरी, कम्युनिकेशन एबिलिटीज आर प्राइमरी. कई बार हम लैंग्वेज को प्राइमरी मान लेते हैं और लिमिटेशंस
लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस हो सकती हैं आपकी, लेकिन दैट शुड नॉट हिंडर इन योर कम्युनिकेशन, हिंडरेंस ना पैदा करे। तो पहली बात, लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, और आपकी लेखनी जितनी अच्छी होगी उसमें आपके मार्क्स का स्कोप उतना अच्छा रहता है। अगर एग्ज़ाम की बात करें, मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2007 के मेंस एग्ज़ाम में आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऐसे, और मुझको नहीं पता था कि ऐसे कैसा लिखा जाता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। अब मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, दैट्स द ट्रुथ। कि पहले हम यही नहीं सोच रहे थे कि हमारा प्री क्वालिफाई होगा भी या नहीं होगा, तो पहले सारा फोकस प्री पे रहता है। अब प्री के बाद मेंस का गैप 2-2.5 महीने का होता है, दैट इज इनसफिशिएंट फॉर मेकिंग योर एबिलिटी शाइन। और प्रीलिम्स का और मेंस का जो कंटेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो आई मस्ट टेल यू कि मैं अनप्रिपेयर्ड ऐसे राइटिंग के लिए, ऐसे का एक पेपर उस समय भी होता था, अभी भी होता है, तो 200 मार्क्स का था वो। तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ 7 टॉपिक्स दिए हुए थे, उसमें किसी एक पे लिखना था। तो कुछ जो हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे या फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स थे, उस पे तो लिखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का उस समय जस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में मैंने कहीं हाफ पेज का आर्टिकल पढ़ा था। इट वाज अंडर डिस्कशन इन दोज डेज। तो वो टॉपिक मैंने पिकअप कर लिया, एंड आई डोंट नो व्हाट आई हैड रिटन, आई कंटिन्यूड राइटिंग। अब ऐसे में तो आप एक बार फ्लो पकड़ लें, फिर यू लूज द साइट कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँचना है। इट इज जस्ट राइटिंग फॉर 3 hours. I continuously written on that topic without having very firm knowledge or very good background, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, तो इन जो न्यूक्लियर पावर है और इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और वो सब चीज़ें और इंटरनेशनल रिलेशन, उसकी सब तैयारियां थीं, तो उसको कंबाइन करके हम कुछ लिखते गए। एंड आई कंक्लूडेड, काफ़ी लंबा ऐसे हो गया, हम उसको कभी वापस पलट के भी नहीं देख पाए कि हमने लिखा क्या है। लेकिन जब मार्क्स आए तो आई वॉज सरप्राइज्ड। इट वॉज 145 आउट ऑफ 200, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स माने जाते हैं ऐसे में। जिस अगले साल जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मैंने जो टॉपिक को चूज़ किया था, इट वाज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उस पर मुझे महारत हासिल थी। आई वॉज नोइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा, और मेरे उसमें मार्क्स आए 119 और 120। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर मेरे पास बहुत स्ट्रांग था PRIs का, लेकिन उसमें मार्क्स में नहीं ला पाया। 120 मार्क्स या 119 आए थे, और उससे पहले जो टॉपिक मुझको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं पता था, उसमें 145 मार्क्स आए थे। तो ये जो डिफरेंस है, एक चीज़ होती है कंटेंट की और दूसरी होती है कम्युनिकेशन की। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू थ्रू दिस एग्जांपल इज that communication is much more important than the content. So that's the answer to your first question. अब second question है, उसमें ये सबका अपना subjective assessment होता है। As a career, you will have so many options. You will have so many options. आपका अपना aptitude क्या है? हर किसी का एक सोशल एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोग
इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ को लाइफ में रिसर्च वर्क टाइप का काम करना पसंद है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे. दे शुड कंटिन्यू वर्किंग इन देयर ओन पेस, इन देयर ओन फील्ड, विदाउट गेटिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम अदर्स. दैट इज वन एस्पेक्ट. सो दे प्रीफर टू गो इन रिसर्च फील्ड. वो इंडिविजुअलिस्टिक फील्ड होते हैं. कुछ लोगों को सोशल रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो उस तरह की जॉब प्रीफर करते हैं जिसमें कि सोसाइटी के साथ में टच रहे, इंडिविजुअल्स के साथ में टच रहे. और बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो फिर दे कंप्रोमाइज एंड गेट सेटल्ड इनटू सम अदर जॉब्स. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं. अब रियली वर्थ इट, वो तो सबके लिए अपना आंसर खुद खोजना होता है, बट लाइफ इज वर्थ इट. Can I ask 2 questions? नॉन साइंस बैकग्राउंड को चुना है, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप और डिफरेंट प्रोफेशंस जैसे ये बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अपना डिसीजन अपने फ्रेंड्स के डिसीजन के ऊपर लेता है. और क्योंकि आपने कम्युनिकेशन की बात कही, बच्चे के पास विचार हैं, वो बोलना चाहता है, लेकिन आसपास दोस्तों का ग्रुप देख के बोलता नहीं है. देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यंग एज में. हम लोग अपने लिए रोकते हैं. फ्री फ्लो से रोकना. बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं कि पता नहीं हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, हमारा कंटेंट दूसरों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, हमारे बोलने का तरीका पसंद आएगा नहीं आएगा. आई एम इनडिसिसिव अबाउट कि वेदर इट इज द राइट मोमेंट टू स्पीक और नॉट. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी थॉट्स है या जब हम बोलना चाह रहे हैं उस समय हम बोल नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रेंड हो जाते हैं अपनी लोकल थिंकिंग से उस समय जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है. तो यह हमारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट होना चाहिए. क्या? सबसे पहले यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. मैंने अभी बीच में कहा था, वट एवर यू आर, वट एवर यू नो, वट एवर योर बिल्ट इज, जो कुछ भी हो वो आप अपने लिए सुप्रीम होना चाहिए. जो आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, खुद से लव नहीं कर सकता, उसे दुनिया में किसी दूसरी चीज से ना तो रिस्पेक्ट हो सकती है ना लव हो सकता है. तो फर्स्ट थिंग, you must have unconditional love for yourself, unconditional respect for yourself, and then you gain that confidence कि कभी भी किसी के सामने बोलना है तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये सब अपने आप आ जाता है. तो कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं करना चाहिए बल्कि कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए. क्या होगा? कुछ गलत ही तो बोल लोगे, एक आध बार गलत बोलोगे, खुद अपने लिए अगर इंट्रोस्पेक्शन करते जाओगे तो उसमें भी सुधार हो जाएगा. ये चीज यकायक नहीं आती है, अचानक नहीं आएगी. आपको धीरे धीरे इस पे वर्क करना पड़ेगा. आपको अपनी स्यूडो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करने की जब चाहत होती है तब आप खुद को इनहिबिट करते हो. आप जो हो नहीं वो जब दिखना चाहते हो तब आप खुद को इनहिबिट करते हो कि कहीं आपका सही पर्सोना तो एक्सपोज नहीं हो जाएगा. ये सब आपको रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर में तब्दील कर देती हैं ये सब बातें. तो आपको अपने लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, जस्ट अलाउ फ्री फ्लो. मैं आप लोगों से इंटरेक्शन इसीलिए कर रहा हूं और ये बड़ा फ्री फ्लो है, जैसे कि हम नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं, है या नहीं है? महसूस कर रहे हो इस बात को? ये कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड ऐसा डिबेट कंपटीशन नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और आप कुछ बोलें, आप पहले से प्रिपेयर्ड हों और मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं. ये ऐसा नहीं है. लाइफ इज स्पॉन्टेनियस. वी हैव टू लर्न लाइफ टू लिव स्पॉन्टेनियसली. इसकी अनसर्टेनिटी और स्पॉन्टेनियसनेस में ही मजा है. आपको सब चीज प्रिपेयर्ड हो
वो तो आर्टिफिशियल हो गई। लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। आपको जो समझ में आ रहा है वो आप बोलिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। बहुत सारे बच्चों को ये लेवल अचीव करने में बहुत समय लग जाता है और तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो हमें आर्टिफिशियलिटी प्रोजेक्ट करने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। वी शुड हैव ए पैशन टू एक्सेप्ट योर सेल्फ वट यू आर। आप हो सकता है बहुत अच्छी हिंदी या बहुत अच्छी इंग्लिश ना बोल पाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज इज ऑलवेज सेकेंडरी, उसका ग्रामेटिकली करेक्ट होना इज ऑलवेज सेकेंडरी। आपका कम्युनिकेशन एंड द कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज प्राइमरी। कॉन्फिडेंस उसमें प्राइमरी है, यह महसूस करिए बच्चों, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत होने पे कोई ना कोई आपको सुधार देगा और जब वो कोई कहे तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है विदाउट टेकिंग इनटू ईगो। ये आपको इनोवेशन तभी होता है जब आपके अंदर ईगो होती है। ये थोड़ा माइंड करो बच्चों। ईगो क्या है? ईगो आपको रोकती है बहुत सारी चीजें करने से जो आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको फेलियर का एक रिस्क नजर आता है और फेलियर से उत्पन्न होने वाली जो असहजता है उसको आप प्रिडिक्ट करते हो कि अगर मान लो मेरी बात इनअप्रोप्रिएट हो गई तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, या मैं उसको कैसे बचाऊंगा, फेस सेविंग कैसे करूंगा। इस सब में उलझ जाते हैं हम लोग, उलझते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी ईगो हमको रोकती है फ्री फ्लो के लिए। और जब ईगो नहीं होती है तो आप नेचुरल होके, नॉर्मल होके हमेशा बात कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि प्रिपेयर्ड होके आपको करनी चाहिए और कुछ एक लर्निंग ये भी करनी चाहिए कि कैसे एक्सटेम्पोर बोला जाता है, कैसे नेचुरली स्पॉन्टेनियसली बोला जाता है। थैंक यू। आपने साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस भी बता दिया बहुत जेंटली। एक चीज़ और है, इट इज़ एसेंशियल टू राइट, दैट यू ऑल कम टू नो, बट फॉर राइटिंग यू नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव, यू नीड टू हैव आइडियाज़। लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, किताबों के बियॉन्ड पढ़ना, और बच्चे उसके लिए टाइम कैसे निकालें और टीचर्स भी कैसे निकालें, क्योंकि बच्चे और टीचर्स सब ये कहते हैं टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा पढ़ने का। हाउ डू यू मैनेज दैट? कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं। मैं कई बच्चों से मिलता हूं, अभी नई जनरेशन के बच्चे, वो कई बार ऑनलाइन गेम्स में या ऑनलाइन जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें ज़्यादा मशगूल हैं और उसे एंजॉय करते हैं। करिए। पहले जो फिजिकल गेम्स होते थे उनको बच्चे एंजॉय करते थे, ऐसे ही अब ऑनलाइन गेम्स को भी एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में मजा आता है? हाथ खड़ा करें। बहुत कम। अरे आधे ही हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा तो मजा आता होगा। नहीं, नहीं आता है। जबरदस्ती टीचर्स पढ़ाते हैं और आप उतना पढ़ लेते हो। यह सही बात है क्या? देखो, अब मैं इस पे आप सब बच्चों को एक बात बताता हूं। एक वर्ड होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कितने बच्चों ने इस वर्ड को सुन रखा है? और दूसरा वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कितने बच्चों ने सुन रखा है? सब ने सुन रखा है। ओके। अब जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये क्या है? आप किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को अगर लाइक करना चाहो तो आप उसे लाइक कर सकते हो, और अगर उससे नफरत करना चाहो तो नफरत कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। मैंने कहा था
कि your life and all the outcomes in your life are functions of your decisions. ठीक है, it is a decision. You want to love the subject or hate the subject, it's your choice. Your choice is definitely governed by your cognitive processes. How you think, how your brain processes the information that is coming, how you memorize the things, है ना? तो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सारे सब्जेक्ट्स में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, देन यू हैव टू रीविजिट योरसेल्फ, यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट जिस चीज में है वो आपको पढ़ने को नहीं मिलता. ऐसे कितने लोग हैं कि वो पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे हैं और इंटरेस्ट कहीं और है. बहुत सारे ऐसे बच्चे. तो उन चीजों को पढ़ने के लिए किसने रोका है आपसे? मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं. हाई स्कूल तक मुझको हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था. आई यूज्ड टू रीड एंड राइट पोइट्री ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड. मैं हाई स्कूल में आने तक मैंने जितने भी बड़े नॉन पोइट्स थे उनकी सारी पोइट्री मैं पढ़ चुका था और मुझको बड़ा इंटरेस्ट आता था. लेकिन 11th में मुझको ये पता नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो मैंने मैथ्स भी ले लिया था, बायो भी ले ली थी, और इसलिए मुझे हिंदी छोड़नी पड़ी थी. तो वो उस समय एकेडमिकली तो छोड़ दी थी, लेकिन वो मेरे साथ साथ अब तक चल रही है, क्योंकि दैट वाज ए सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट. वो अब तक चल रही है और मैं उसे एंजॉय करता हूं. तो हर किसी के एकेडमिक्स में कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होना चाहिए, चाहे वो लिटरेचर हो, लिटरेचर किसी भी तरह का, प्रोज है, नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, कुछ भी है, एक इंटरेस्ट होना चाहिए. वहां से आपको दूसरे इंटरेस्ट जनरेट होते हैं. मैथ्स में इंडक्शन और डिडक्शन, जब आपको कोई एक चीज नोन है, ठीक है, एक नोन चीज के माध्यम से जब आप कोई अननोन चीज को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये जो हमारी मेंटल प्रोसेस है ना, कि हम जब किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए अपना कोई नॉन रेफरेंसिंग करते हैं कि इसकी तरह ये चीज होती है. ठीक है ना? आपको एक किसी ने कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये स्टेज ऐसा होता है, ठीक है, या चेयर ऐसी होती है. अब वो चेयर के फॉर्मेट्स डिफरेंट हो सकते हैं. आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट बन गया, उसके आधार पर आप सिमिलर चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करते हैं. ठीक है ना? तो इसी तरह से आप नोन से अननोन को सीखते हैं लाइफ में, और ये एक थ्रू आउट लाइफ की प्रोसेस है ना? हम ट्रांसलेशन भी सीखते हैं इसी के तहत, कि हमको पता है कि एप्पल क्या होता है, या हमको पता है सेब क्या होता है, और वो दिखा दिया तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये तो हाँ सेब है. तो एप्पल जब किसी ने बताया तो हम उसको सेब ही मानते हैं. यही बात है ना? तो हम अननोन से नोन की तरफ जो हमारे जानने की जर्नी है, वो हमारे इंटरेस्ट के फील्ड से गुजरती है. तो लाइफ में वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं जिनका बेस जितना स्ट्रांग है, जो जितना ज्यादा, देखो जो अननोन आपने जान लिया वो नोन की पेरिफेरी में आ गया ना, तो आपके नोन की वोकैबुलरी या जो बंडल है नोन का, वो ग्रो करने लगता है.
और वो जितना बड़ा जिसके पास है, नोन का बंडल जितना बड़ा जिसके पास है, वो उतना ज्यादा अननोन को इंटरप्रेट कर सकता है। ये बात समझ में आई आपके? हैं? इसलिए जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ो, उनको थोड़ा सा आप हायर स्टैंडर्ड्स की बुक से पढ़ो। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपके इंटरेस्ट की चीज आपके जो बकेट है, जो नॉलेज बकेट है, उसमें भरती जाएगी। और उससे आप जो अननोन वर्ड है, अभी बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो अभी आपने देखी नहीं है, उसको आपको धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ही सीखने को मिलेगा। तो आप अपने लिए तैयार करिए, अपनी नॉलेज के बकेट को जितना ज्यादा से ज्यादा फिल कर सकते हैं उतना फिल करिए। तो आपको केवल ये एकेडमिक चीज नहीं है, अभी लाइफ में जब आप आएंगे, एकेडमिक्स तो आपके ग्रेजुएशन के बाद में समाप्त हो जाती है। ये लाइफ एक यहां पर एकेडमिक्स की एक तरीका जो स्कूल में आके सीखने का होता है, ये विराम हो जाता है। इसके बाद आपको सेल्फ लर्न करना पड़ता है। अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, आपको उनका सामना अलग अलग तरीके से करना होता है। तो अपने लिए ये जो स्कूली शिक्षा है, ये आपको लगता होगा कि आपको कंटेंट सिखाने के लिए है। कितने लोगों को लगता है स्कूल में जो आप लोग सीखने आते हैं, इसका कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है? अभी कितने लोगों को ऐसा लगता है? अच्छा, जिनको नहीं लगता है उनको क्या लगता है? Sir, like I would like to take an example. Sir, in 9th and 10th, we studied economic applications. So the content of that subject, whatever we learned, was not everything you needed to know to understand economics or to even know about business or entrepreneurship. However, by studying economic applications in 9th and 10th, firstly, you get to know that you have an interest in that field. You get to know that that subject matter is of your interest. And secondly, slowly and slowly, when you are studying that related matter, you start to understand the basics of that. Even if you do not know the cutting edge knowledge or the most important thing, you know the basics at least. Okay. अब बच्चों में एक बहुत जो मुझे लगा, आई डू नॉट नो प्रिंसिपल मैम का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये जितनी भी स्कूल में हमको लर्निंग होती है ना, ये सिर्फ ये सिखाने के लिए होती है कि सीखा कैसे जाता है। अभी टीचर्स हेल्प करते हैं कि आपको सीखना कैसे है। बाद में आपकी इस पूरी प्रोसेस में आपकी एक हैबिट बन जाती है सीखने की, कि हमको पढ़ने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई। ठीक है, ऐसे ही जब आप रियल फील्ड में पहुंचते हैं तो सिर्फ वही लर्निंग काम आती है कि सीखना कैसे है। अभी तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ के सीखना सीख लिया, अब बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपको सिचुएशंस से खुद पढ़ना है, खुद सीखना है। तो यहां की जो मेमोरी है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो आपको ट्यून अप कर देती है नई सिचुएशंस में अपने आप सीखने के लिए। तो दिस इज मेकिंग यू रेडी फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस, जब आपको नई लर्निंग तुरंत करनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव इन दिस कि ये जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग दी स्किल्स। जो आपने इतनी सारी चीज़ें कहीं, वो यहाँ डेवलप करने का समय है। जब आप उसको डेवलप करेंगे उस इंटरेस्ट से, सो ऑटोमेटिकली द कंटेंट मैटर विल रिमेन विद यू। इट्स अबाउट योर सिंसियरिटी, इट्स अबाउट गेटिंग इनटू लर्निंग समथिंग न्यू। This is the philosophy of the school, and that is why we say we are a school of conscious transformation. It is to find yourself, not limit yourself to that content. चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज आपने हमें
छात्र होने के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे उपस्थित सभी छात्रों के लिए आपकी जीवन के बारे में सुन के, आपके निरंतर परिश्रम करते रहने की आदत के बारे में सुन के हम सभी प्रेरित हुए होंगे, और इसीलिए मेरा आपको शत शत नमन है। हम अपना थोड़ा सा आभार व्यक्त करने हेतु एक छोटी सी भेंट आपके लिए लाए हैं, कृपया उसे स्वीकार करें। Now, I would like to address the chief guest, Shri Gangwarji, and our dearest principal, Ms. Promni Chopra, to kindly award all the achievers with prizes. Parth Singh, who has secured the All India rank of 2,291 and is being awarded a cash prize of 1 lakh rupees. Abhinav Srivastav, who has secured the All India rank of 2,528 and is receiving the cash prize of 51,000 from the school. Pranav Gupta, who has secured the All India rank of 4,505 and who is receiving the cash prize of 51,000 from the school. Ritwij Verma, who has secured the All India rank of 6,000 and is receiving the cash prize of 21,000 from the school. Akshat Agarwal, who has received the All India rank of 9,794 and who is receiving the cash award of 21,000 from the school. Saurabh Verma, who has secured the All India rank of 1,000 and who is receiving the cash prize of 21,000. Harshvardhan Singh, who has received the category rank of 2,351 and who is absent today, he is receiving the cash award of 21,000 from the school. I now request the candidates for the Inspire Fellowship to come on stage to receive their certificates. Akshat Agarwal, Pranav Gupta, Aparna Tripathi, Parth Singh, Aryan Agarwal, Saurabh Verma. Students who have earned a name for themselves in the field of sports: National Hockey Tournament Under 17 Boys, National Hockey Tournament Under 19 Boys, National Athletics Meet, Skating National Tournament, Football National Tournament, Lawn Tennis National Tournament, Karate National Tournament, Chess National Tournament, Badminton National Tournament and Yoga National Tournament. हर्षनाथ झा हमारे विद्यालय के कवि, इन्होंने एक किताब लिखी है, इसका नाम है यह मेरा पहला प्रयास है। Once again, I express my gratitude to you, sir, for being present today.